Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid, and in this video we are going to discuss reaction kinetics. Reaction kinetics में बेटा rate of reaction क्या होता है और इसकी types क्या क्या होती हैं, instantaneous और average rate of reaction, when they become equals to each other, और इनकी definitions क्या होती हैं, कब कौन ज़्यादा होता है, कब कौन कम होता है, rate of reaction instantaneous कब ज़्यादा होएगा, कब average ज़्यादा होएगा, and along with this we'll also discuss the factors affecting on the rate of reaction और किस तरह से इनको calculate किया जा सकता है. For example, we have some chemical methods जो कि डेटा से extract करके ग्राफ प्लॉट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, एंड वी हैव सम फिजिकल मेथड्स एज वेल, जैसा कि वी हैव रिफ्रैक्टोमीटर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड. सो इस तरह के तमाम मेथड्स को हम कवर अप करेंगे इन दिस वीडियो. सो लेट्स मूव टू द लाइट बोर्ड. अस्सलाम वालेकुम जी. In this video, we are going to discuss reaction kinetics. Beta, reaction kinetics comes from the movement in motion. तो reaction जब अपनी motional state में होता है, when it is in the moving state, तो उसकी speed vary करती है. उसकी speed पे क्या affect होता है, कौन कौन से factors affect करते हैं, and how can we calculate the rate of reactions. So all these things we will cover in reaction kinetics. So first thing कि rate of reaction होता क्या है बेटा, that is also known as speed of reaction. बेटा reaction होता क्या है, सबसे पहले तो reaction का पता होना चाहिए. what is reaction? So first thing which came in our mind, that is the change in concentration. बेटा sometimes अगर आपसे reaction का पूछा जाता है ना, तो students always give answer in this way कि when reactants reacts together to form a product, so ये reaction है. So बेटा sometimes ऐसा भी तो होता है, products can recombine to form reactants again. तो reversible reactions भी तो कुछ होते हैं. So जिस भी टाइप का reaction है, in every type of reaction we will observe the change in concentration. जो भी reactants हैं, जो भी substances हैं हमारे पास, बेटा उनकी concentration में variation आती है. So can I write in this way कि reaction is change in concentration? Yes. So change in concentration, this is called reaction. So change in concentration with respect to time, that is called as rate of reaction. Okay, so for example, we have a substance A, we have plus B, and it is converting into C. This is a particular chemical reaction. बेटा initially तो हमारे पास होते हैं just reactants. We don't have any product in the beginning when the time is 0. So for example, you have 5 moles per cubic decimeter of A. You have 10 moles per cubic decimeter, that is the unit of concentration. B. Initially तो आपके पास है 0 product. With the passage of time, reactants की concentration decrease करती जा रही है. It comes over 2, it comes over 8 या 7 या 6 moles per cubic decimeter पे आ गई, and you are getting something in the form of product. तो यहाँ पे for example you are getting 5 moles per cubic decimeter. ये आपके पास products बने हैं. Although ये 7 होना चाहिए था, let's suppose कि 2 moles per cubic decimeter कहीं पे लॉस हो गया है, कोई gaseous product बना, वो सिस्टम से रिलीज हो गया, या साइड रिएक्शन की वजह से, ह्यूमन एरर्स की वजह से ये मैकेनिकल लॉसेस होते हैं. Actual yield always less than the theoretical yield. So it is 5 या 6 mole per cubic decimeter, but you are getting something. So बेटा चेंज तो हो रहा है ना, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में भी चेंजिंग आ रही है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में भी चेंजिंग आ रही है. सो दिस इज कॉल्ड रिएक्शन. ठीक है, जहां पे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स किसी की भी कंसंट्रेशन में चेंजिंग आ जाए.
और अगर ये चेंज आ रहा है विद इन 5 सेकेंड्स और सेम यही रिएक्शन प्रोसीड किया जाता है एंड सेम प्रोडक्ट की अमाउंट वी आर गेटिंग इन 3 सेकेंड्स, सो ऑब्वियसली 3 सेकेंड्स में जो रिजल्ट आपको सेम मिल रहा है दैट हैज ग्रेटर स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि टाइम पे डिपेंडेंट है. सो बेटा कैन आई राइट इन दिस वे के रेट ऑफ रिएक्शन is equals to delta C over delta T. Delta C is mole per cubic decimeter. जो change in concentration का unit होता है that is mole per cubic decimeter. And delta T is the time. तो time का unit क्या होता है बेटा? second. Second is in the denominator. So that is divided by second, or we can write in this way second per second. ठीक है? So this is the unit of rate of reaction. So बेटा there are two types, various types होती हैं जिनमें से we have to discuss the average rate of the reaction and instantaneous rate of reaction. बेटा average rate क्या होता है और instantaneous rate क्या होता है और इनमें से कौन सा ज्यादा faster होता है? So this is what we have to अंडरस्टैंड. सबसे पहले तो है एवरेज रेट. एवरेज रेट हमेशा लिया जाता है टू स्पेसिफिक पॉइंट्स पे से. एवरेज रेट ऑलवेज टेकन इन बिटवीन द टू पॉइंट्स. अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान में कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बेटा वो होगी एवरेज रेट. और किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हो एट 1 पॉइंट, तो बेटा दैट इज योर इंस्टेंटेनियस रेट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ ग्राफ लाइक दिस and I am just drawing the random value. A curve आपके पास आई है. These are the points. Over here we have concentration. On this side we have concentration on the y-axis. On the x-axis we have time, t. These are the points. टाइम के भी लगा लें. These are the points of reactants जो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में कंसंट्रेशन को मैंने लिया. विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर ऑब्जर्विंग कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जा रही है. सो बेटा अगर आपको कहा जाता है कि सेकंड पॉइंट पे बेटा स्पीड क्या है, इस पॉइंट पे बताएं स्पीड क्या है, विल टेक डेल्टा ओनली द concentration at this specific point divided by time, जो यहां पे आपको टाइम इसके अगेंस्ट आ रहा है. ठीक है? That will give you the instantaneous rate. और अगर आपको कहा जाता है एवरेज रेट को कैलकुलेट करें, in that way we have to use 2 points. इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में then we have to observe the change in concentration. इन दोनों के दरमियान में कितना कंसंट्रेशन का चेंज आया है और कितना टाइम का चेंज आया है. इन दैट वे वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन. अदरवाइज एक ही पॉइंट पे निकालना है तो कंसंट्रेशन उसी पॉइंट की और उसी पॉइंट का टाइम डिवाइड कर दो, यू विल गेट द इंस्टेंटेनियस रेट. ठीक है? एवरेज रेट ज्यादा प्रिसाइज होता है, इंस्टेंटेनियस रेट प्रिसाइज नहीं होता. दैट इज अनदर डिफरेंस. ठीक है? इट इज मोर प्रिसाइज, लेस प्रिसाइज है. हमेशा अगर स्टार्टिंग में आप ऑब्जर्व करोगे इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट, और इस पॉइंट पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो इंस्टेंटेनियस रेट, तो बेटा इंस्टेंटेनियस रेट हमेशा ज्यादा होता है बिगिनिंग में. इन द बिगिनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट इज हायर, इज ग्रेटर, बट
जो एंडिंग स्टेज होएगी बेटा वहां पे एवरेज रेट ज्यादा होता है, ठीक है। इन द बिगिनिंग instantaneous rate is greater और स्टार्टिंग में एवरेज रेट कम होता है। एवरेज रेट इज लेस। ये कहां की बात कर रहे हैं बेटा? स्टार्टिंग में। आहिस्ता आहिस्ता इंस्टेंटेनियस रेट कम होता रहता है और एवरेज रेट इंक्रीज करता रहता है। और एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों इक्वल होते हैं, दैट इज व्हेन द टाइम इज जीरो। सो जब टाइम अप्रोचेस टू जीरो होएगा, एट दैट पॉइंट बेटा एवरेज रेट becomes equals to instantaneous rate. So this is the important MCQ. Average rate और instantaneous rate कब zero होते हैं? When the time of the reaction approaches to zero. At that point average rate और instantaneous rate एक दूसरे के equal हो जाते हैं। Now moving towards the factors. Factors affecting on speed of reaction, on rate of reaction. So beta, first point is nature of reactants. Obviously किस तरह के reactants यूज किए जा रहे हैं वो speed of reaction पर affect करेंगे। For example, you have group 1 metals and group 2 metals. बेटा group 1 metals are very reactive. Group 1 के जितने भी metals हैं they are reactive, more reactive होंगी rather than group 2, ठीक है। group 2 और group 1 में से group 1 ज्यादा reactive है। That is the nature of the reactant. If I am using group 1 metal और उसका कोई reaction हम करते हैं, so it will show explosive reactions. और please remember these points के group 1 की जो metals होती हैं they are soft, they can cut with the knife. वाटर में अगर फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स को ऐड किया जाए पानी के अंदर, बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हमें लगता है कि यहाँ पे पानी में आग लग गई है। सो मैजिशियंस डू दीज थिंग्स। फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स को पानी के अंदर फेंका और पानी के अंदर आग लग गई। सो दिस इज नॉट मैजिक बट द केमिकल रिएक्शन बिहाइंड दैट। सो ग्रुप 1 की मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। इसी तरह से ग्रुप 2 की उससे रिलेटिवली स्लो है। ग्रुप 3 की जो मेटल्स होंगी वो उससे भी ज्यादा स्लो है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। सो जिसके कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 एलिमेंट्स, तो दैट्स व्हाई दे आर शोइंग द फास्टेस्ट रिएक्शंस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स शो आयनिक रिएक्शंस, कोवेलेंट कंपाउंड्स शो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। सो बेटा जितने भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं दे आर फास्टर। आयनिक रिएक्शंस फास्ट होते हैं। सो आयनिक रिएक्शन शो कौन करते हैं? आयनिक कंपाउंड्स मोस्टली, ठीक है। सो जब आयंस में डिसोसिएशन हो रही होती है वो रिएक्शंस फास्ट होते हैं और मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो होते हैं दैट इज स्लोअर देन द आयनिक रिएक्शंस जिसमें आयनिक कंपाउंड्स यूज कर रहे हैं, यानी कि ये भी रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली बेटा डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल वी हैव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज स्लोअर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिलेटिवली फास्टर होते हैं। Whereas oxidation and
reduction that is slower. So बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे भी डिपेंड करता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, किस टाइप का हम रिएक्टेंट यूज करें. फॉर एग्जांपल अगर नॉन मेटल्स की बात की जाए, वी हैव फ्लोरीन, वी हैव क्लोरीन, वी हैव ब्रोमीन, वी हैव आयोडीन. सो बेटा ग्रुप 7 में से विच कैन शो द फास्टेस्ट रिएक्शन? ऑब्वियसली जो फ्लोरीन है. F2 that is the gas. Chlorine is also a gas. Bromine is a liquid, reddish brown liquid है जो कि रूम टेम्परेचर पे होगी. Iodine that is solid, sublime solid होता है. So बेटा solids का रिएक्शन जरा स्लो होता है. Bromine that is liquid, liquid उससे relatively ज्यादा तेज रिएक्शन शो करेगी. क्लोरीन उससे ज्यादा तेज रिएक्शन शो करेगी. फ्लोरीन के रिएक्शंस विग्रस होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू आर रिएक्टिंग हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, और हाइड्रोजन और क्लोरीन को, या हाइड्रोजन और ब्रोमीन को, हाइड्रोजन और आयोडीन को, बेटा आउट ऑफ दीज ऑल रिएक्शंस जो फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान में, दैट इज फास्टर देन द रिमेनिंग रिएक्शंस. तो इट मींस reaction depends upon the reactant. Speed of reaction vary करती है किस तरह का reactant आप यूज कर रहे हो. Got it? अब अगर ग्रुप 1 की मेटल्स में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, you have sodium, potassium, rubidium और cesium which can react faster with the water. बेटा please remember this thing. ग्रुप 1 में फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है. सो अगर ग्रुप 1 की बात की जाए, सो जितना नीचे होएगा एलिमेंट, जितना साइज उसका ज्यादा होएगा, इट शोज द फास्टेस्ट रिएक्शन. सो ग्रुप 1 में से बेटा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में से विच वन कैन शो द फास्टेस्ट रिएक्शन? दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर अस इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन है इसी से रेलेवेंट, हैलोजेंस में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है. वाई फ्लोरीन इज शोइंग द फास्टेस्ट रिएक्शन? ठीक है. आंसर मैंने बता दिया है कि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, फ्लोरीन के रिएक्शन ज्यादा विग्रस होंगे, फास्ट होंगे. वाई दिस इज सो? आपने इसकी रीजन मेंशन करनी होगी कमेंट बॉक्स में. ठीक है जी. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड फैक्टर, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन. क्या कहा है जी? अगर कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं तो व्हाट विल हैपन? बेटा वी विल हैव मोर मॉलिक्यूल्स. कंसंट्रेशन का मतलब हुआ अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम. amount of particles per unit volume. बेटा ये इंक्रीज कर जाएगी. अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो गए हैं इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल यू हैव दिस बॉक्स. In this box we have, for example, 5-6 molecules. अगर मॉल इंक्रीज कर दूं और वॉल्यूम इतना ही हो, सो बेटा कहां पे कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली इन द सेकंड वन. ठीक है. तो बेटा जब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं, अमाउंट ऑफ द पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, सो देयर आर मोर चांसेस कि पार्टिकल्स विल कोलाइड टुगेदर. बेटा रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड करता है कोलिजन थ्योरी पे. व्हाट इज कोलिजन थ्योरी? कि पार्टिकल्स हैव टू कोलाइड टुगेदर. जब पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं उनकी कोलिजन होती है. सो देयर आर सम कोलिजन्स which can convert into the effective collision. Effective collision क्या होती है? That can give you the products. ऐसी collisions जिसमें एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए.
सो दैट इज कॉल्ड एज अफेक्टिव कोलेजन, सक्सेसफुल कोलेजन। तो बेटा ओनली सक्सेसफुल कोलेजन जो होती हैं, जो अफेक्टिव कोलेजन होती हैं, वही प्रोडक्ट बना सकती हैं। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम जब इंक्रीज होएगा, सो वी कैन से अफेक्टिव कोलेजन पर यूनिट टाइम इंक्रीजेस, और यू कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलेजन इंक्रीजेस। क्या हम कह सकते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलेजन इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलेजन इंक्रीज कर जाती है। बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलेजन जब भी इंक्रीज करती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। सो इन दिस वे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो कंसेंट्रेशन के इंक्रीज होने से अमाउंट ऑफ द पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, दैट शोज यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलेजन इंक्रीजेस। इस टर्म की जगह पे आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो, अफेक्टिव कोलेजन पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम के साथ रिलेशनशिप है हमेशा रेट का। जब रेट की बात कर रहे हैं, सो इट ऑलवेज एसोसिएटेड विद द टाइम। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलेजन इंक्रीज हो जाएगी, विच एक्चुअली इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन तभी होएगा जब प्रोडक्ट्स बनेंगे। अफेक्टिव कोलेजन की वजह से प्रोडक्ट्स बनते हैं। इनफेक्टिव कोलेजन या अनसक्सेसफुल कोलेजन अगर होती रहेगी, दैट कैन नॉट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वो रिएक्टेंट्स वापस बाउंस बैक हो जाते हैं। जब इनफेक्टिव कोलेजन होएगी, अनसक्सेसफुल कोलेजन होएगी, पार्टिकल्स विल कोलाइड टुगेदर एंड दे विल बाउंस बैक, दे विल नॉट कंबाइन टुगेदर, और नया मॉलिक्यूल नहीं बनता। और जब तक नया मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, सो कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस थिंग। सो इसी के साथ एक पॉइंट ऐड करूंगा, की पॉइंट एमसीक्यूज के लिए। बेटा जब गैसेस की बात की जाती है ना, गैसेस में जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो बेटा वो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है पार्शियल प्रेशर उसका इंक्रीज हुआ है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट फॉर द गैसेस, गैसेस के लिए बता रहा हूं। जो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज विथ पार्शियल प्रेशर। ओके, सो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो गया मींस कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, अमाउंट इंक्रीज हो गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो गई है, और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइट। बेटा व्हाट इज लाइट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट में क्या होता है, ऐसा एनर्जी का सोर्स क्या है? लाइट हैज फोटॉन्स। लाइट में क्या होते हैं बेटा? फोटॉन्स। नाउ व्हाट आर फोटॉन्स? फोटॉन्स आर एक्चुअली स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। तो अगर एक रिएक्शन चल रहा है और आप वहां पे लाइट को फॉल करते हो, एक्चुअली लाइट के फॉल करने से व्हाट इज हैपनिंग? फोटॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे। लाइट अगर फॉल कर रही है पार्टिकल्स पे, एक्चुअली फोटॉन्स आके उन पे टकरा रहे हैं, फोटॉन्स उन तक पहुंच रहे हैं, और फोटॉन्स के इंक्रीज होने का मतलब है, फोटॉन्स होते क्या? स्मॉल एनर्जी पैकेट्स होते हैं। स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, फोटॉन्स आर स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। तो फोटॉन्स के फॉल करने का मतलब है कि एनर्जी पैकेट्स वहां पे आके फॉल कर रहे हैं एंड पार्टिकल्स आर गेटिंग एनर्जी, सो वो एक्साइटेड हो जाएंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन उनका ज्यादा क्यों होएगा? बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। स्मॉल एनर्जी पैकेट जैसे ही फॉल करेंगे रिएक्टेंट्स पे, देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। और बेटा जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज कर जाए तो व्हाट विल हैपन? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है।
सो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि लाइट इंक्रीज करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, बिकॉज पार्टिकल्स आर गेटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ small energy packets which are actually known as photons. So this is the concept of light. So beta, tell me what is catalyst? Catalyst क्या होता है? We know कि catalyst is a substance that alters the speed of reaction. ठीक है? Catalyst actually decreases the activation energy. यहां पे अगर हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करें, इफ यू हैव दिस रिएक्शन कर्व, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, तो बेटा आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी इनिशियली ये थी, दिस वन इज योर एक्टिवेशन एनर्जी. सो बेटा जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, एक्चुअली कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी. होता क्या है, in this region we have those particles which are having energy more than the activation energy. और बेटा ऐसे रिएक्टेंट जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होती है, only those particles are able to form products. ठीक है, सो वो अफेक्टिव कोलिजन शो करते हैं, वही प्रोडक्ट बना सकते हैं. सो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन वी आर नॉट यूजिंग एनी कैटलिस्ट. और जैसे ही हम कैटलिस्ट यूज करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है. सो एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे आ गई. दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी बाय यूजिंग कैटलिस्ट. दिस इज विद कैटलिस्ट. हम जनरल स्टेटमेंट तो पढ़ते हैं, बाय यूजिंग द कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस. एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने से क्या होता है, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर हैविंग ग्रेटर एनर्जी देन द एक्टिवेशन एनर्जी नाउ. सो ये भी तमाम पार्टिकल्स अब उन पार्टिकल्स में इंक्लूड हो जाएंगे विच कैन शो द अफेक्टिव कोलिजन. और जितनी ज्यादा अफेक्टिव कोलिजन होएगी उतना ही स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा. तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन. अगर मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करता हूं, इफ वी हैव अ नेगेटिव कैटलिस्ट दैट इज शोइंग यू द रिवर्स प्रोसेस व्हिच डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, उनको हम कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट. ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट. सो कैटलिस्ट जनरली यूज किया जाता है स्पीड ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करने के लिए इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस. ठीक है, और देयर आर वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन जिनमें कैटलिस्ट इज यूज एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट, जो डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है. सो कैटलिस्ट जब हम ऐड करते हैं, व्हाट विल हैपन, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है. एक्टिवेशन एनर्जी के डिक्रीज करने से क्या हुआ, इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाएगी. और बेटा जब इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाता है, इन दैट वे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है. ऑल राइट, सो नाउ वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या ताल्लुक है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ. बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं पार्टिकल्स को. फॉर एग्जांपल यू हैव अ रिएक्शन इन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड. बेटा कैल्शियम कार्बोनेट आपने एक्सेस अमाउंट में लिया हुआ है एंड यू आर टेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड जो कि वार्म करना होएगा, और यू कैन यूज एनी अदर. मैग्नीशियम कार्बोनेट है या मैग्नीशियम सल्फेट आप बनाना चाहते हो, सो वी हैव टू टेक मैग्नीशियम कार्बोनेट इन दैट केस और सल्फ्यूरिक एसिड. मैग्नीशियम कार्बोनेट आपने एक्सेस अमाउंट में लिया, सल्फ्यूरिक एसिड आपको वार्म करना होएगा
so that it can give you the specific amount of energy ताकि मुकम्मल तौर पे रिएक्शन पॉसिबल हो सके। जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है रेट ऑफ रिएक्शन भी जनरली इंक्रीज होता रहता है। सो हमेशा ये पॉइंट याद रखना है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस rate of reaction increases। समटाइम्स स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शंस की स्पीड इंक्रीज करती है और एक्सोथर्मिक की डिक्रीज करती है। बेटा दिस इज नॉट इन अ वे। रिएक्शन कोई भी होगा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से उसकी स्पीड बढ़ेगी, बट इट डिपेंड्स कि बेटा इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो दैट इज फेवरेबल फॉर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होएगा पार्टिकल्स विल गेट द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। सो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं व्हाट विल हैपन, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी व्हाट विल हैपन, पार्टिकल्स आर गेटिंग मोर एनर्जी एंड दे विल मूव फास्टर। और जब फास्ट मूव करेंगे देयर आर मोर चांसेस कि दे विल कोलाइड टुगेदर, उनकी कोलाइजन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और जब कोलाइजन के चांसेस इंक्रीज होंगे इन दैट वे फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। और जब फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाती है तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। सो यहां पे एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप याद रखें कि जब 10 केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है सो बेटा स्पीड में ऑलमोस्ट डबल तक इंक्रीमेंट आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है डबल तक। सो यहां पे क्वांटिटेटिव रिलेशन क्या होएगा, जब 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल इंक्रीज हो जाता है। So this is the quantitative relationship in between the temperature and rate of reaction. Generally तो हम कहते हैं rate of reaction बढ़ा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, लेकिन कितना? So this is the quantitative relationship. ये की कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इससे रेलेवेंट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अगर 10 केल्विन टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अगर 20 केल्विन इंक्रीज होएगा तो रिलेशनशिप उसी के साथ आपने ऑब्जर्व करते रहना। ठीक है, सो वी डिस्कस द लाइट ओवर हियर। लाइट से एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का यूज किया जा सकता है कि जब फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं स्मॉल एनर्जी पैकेट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाती है। सो इन दैट वे बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। सो यहां पे एक टर्म मैंने ऐड की एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। दिस इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस कि रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का भी कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो जाए। दिस इज द स्टेट जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही होती है और बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल you have hydrogen and you have chlorine molecule, they are reacting together। तो सबसे पहले it is important कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हुए, क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हुए। होता क्या है, पहले बॉन्ड ब्रेकेज होनी होती है एंड दे हैव टू कन्वर्ट इनटू द एटम्स। तो बेटा ये बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रही है, सिमिलरली क्लोरीन के पार्टिकल्स भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं और हाइड्रोजन क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन भी हो रहा है।
हाइड्रोजन का एटम क्लोरीन के पार्टिकल के साथ कंबाइन भी हो रहा है, तो बेटा ये जो स्टेट होती है जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज दोनों हो रही होती हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. दिस वन इज नॉन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. इसके बाद जो स्टेट आती है दैट इज द प्रोडक्ट स्टेट. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जब कंबाइन हो जाते हैं सो HCl बन जाएगा, तो वो हमारी होती है प्रोडक्ट स्टेट. HCl प्लस HCl, तो ये आपके पास प्रोडक्ट्स बन जाते हैं. गॉट इट? सो ये जो सेंट्रल स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट फैक्टर दैट is affecting on the rate of reaction, speed of reaction पे जो अफेक्ट करता है is surface area. बेटा surface area evaporation के साथ भी आपने इस पॉइंट को डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में. evaporation increases जब surface area increase हो जाता है, जिसमें एग्जांपल दी जाती है if you have a cup of tea, तो उसको उसकी इवेपोरेशन में, उसको ठंडा होने में इट इज टेकिंग मोर टाइम. और इफ यू हैव अ बाउल ऑफ टी, सो वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सो इट इवेपोरेट्स क्विकली और जल्दी ठंडी हो जाती है. सो सेम कॉन्सेप्ट बेटा यहां पे सरफेस एरिया के लिए भी है. सरफेस एरिया में जितना सरफेस एरिया पार्टिकल ज्यादा कवर करेंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होएगा. It means surface area is directly proportional to rate of reaction. But why? या किस तरह से? अब उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं. सो बेटा सरफेस एरिया कौन से पार्टिकल ज्यादा कवर करेंगे? जो बड़े साइज में होंगे या स्मॉल साइज में होंगे? इफ यू हैव अ लंप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बेटा ऑल्दो ये लंप है, एक ढेले की फॉर्मेशन है, सो इसमें सरफेस एरिया बहुत कम कवर किया जा रहा है. दिस इज द पीस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, अगर मैं यूज कर रहा हूं यहां पे स्मॉल साइज पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, स्मॉल पीसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये स्मॉल पीसेस है हमारे पास, सो उतना ही पार्टिकल इट इज कवरिंग द मोर सरफेस एरिया नाउ. सो बेटा जितना ही सरफेस एरिया ज्यादा कवर होता जाएगा उतना ही स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, बिकॉज पार्टिकल्स विल गेट द एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस और सरफेस से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा. वही एनर्जी आगे ट्रांसफर होती रहती है. इन दिस वे द साइज ऑल्सो मैटर्स. जितना स्मॉल साइज होएगा रिएक्टेंट्स का उतनी ही वो ज्यादा सरफेस एरिया को कवर करेंगे, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया कवर होएगा उतना ही स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर गेटिंग एनर्जी एंड दे विल मूव फास्टर, और ज्यादा कोलिजन के चांसेस होंगे, इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाएगा. इन अ सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सरफेस एरिया. ठीक है, जो कि रिलेट करवाना है आपने साइज ऑफ द पार्टिकल्स के साथ. साइज ऑफ पार्टिकल जितने स्मॉल है उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होएगा. दैट इज हैविंग द इनवर्स रिलेशन. और रीजन क्या है? बिकॉज दे विल ऑक्यूपाई मोर सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ज्यादा करेंगे, स्पीड ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा. सो वी कवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट. कब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, कब कौन सा रेट ज्यादा होता है, किसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इंस्टेंटेनियस की या एवरेज की. एंड वी हैव डिस्कस्ड द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी टॉपिक, एनी कॉन्सेप्ट, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम आपकी क्वेरीज को फीडबैक दे सकें और आपकी क्वेरीज रिजॉल्व की जा सकें. सो बेटा नाउ हैव अ लुक ओवर द टॉपिक कि किस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं. वी हैव डिफरेंट मेथड्स. कुछ केमिकल मेथड्स हैं और देयर आर सम फिजिकल मेथड्स एज वेल. पहले हम केमिकल मेथड को ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर परफॉर्मिंग एन केमिकल रिएक्शन जिसमें कंसंट्रेशन का चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड यू आर गेटिंग सम डेटा
कि किस तरह से विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन में वेरिएशन आ रही है. फॉर एग्जांपल, इनिशियली you have this reactant 0.1 mole per cubic decimeter, we have PCl5 स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में यहां पे, ठीक है. PCl5 है 0.1 and we don't have any PCl3 and Cl2 at that time because we have only reactants at that time. With the passage of time, concentration of PCl5 decreases. ये यहां तक आ गई, दैट इज 0.08. कितने सेकंड्स के बाद? आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड्स के साथ. आई हैव टेकन टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 जो कि हमारा रिएक्टेंट है इन दिस केमिकल रिएक्शन, आई हैव टेकन दैट ऑन द वाई एक्सिस. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे टाइम लिया गया है सेकंड्स में. each small point is showing you 10 seconds on the x-axis, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 seconds. In a similar way, y-axis pe we have taken mole per cubic decimeter concentration of the PCl5 0.01, 0.02, 0.05, 0.10, that is 10. ठीक है. So जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करती जा रही है. ठीक है. सो एट दिस पॉइंट वी हैव कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 0.6 और टाइम कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 27 के आसपास. ठीक है. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम फर्दर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 डिक्रीज हो गई एंड एट दिस पॉइंट वी हैव अप्रोक्सीमेटली 50 सेकेंड्स और 0.04 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर हमारे पास कंसंट्रेशन रह गई. सो बेटा किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को? सबसे पहले तो हमने उस डेटा के अकॉर्डिंगली प्लॉट किया ग्राफ को और यहां से फिर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करना होता है. दैट टेंजेंट व्हेन पास, तो यहां पे एक स्लोप ये जो बनी है एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें. So beta rise over run, that is actually your slope. तो by using this concept कि कितना concentration में change आ रहा है, delta C over delta T, और कितना time में change आ रहा है, by using this concept we can find out our rate of reaction. ठीक है. कितना rate of reaction increase हुआ है और कितना decrease हुआ है. Apart from this thing, बेटा टाइट्रेशन मेथड भी तो होता है हमारे पास. एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. सो उसमें विल परफॉर्म मोस्टली टाइट्रेशन मेथड न्यूट्रलाइजेशन के लिए एसिड और बेस. एंड मस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि बेस सॉल्यूबल होनी चाहिए और सोडियम के कंपाउंड्स या सॉल्ट्स बनाने के लिए या पोटेशियम के और सोल्यूबल एसिड्स और सोल्यूबल बेसेस जब रिएक्ट करती हैं, सो बेटा जो सॉल्ट बनता है बेटा इस परफॉर्मेंस के लिए, इस प्रैक्टिकल के लिए हम टाइट्रेशन मेथड को यूज करते हैं. सो टाइट्रेशन मेथड में भी तो एसिड की कंसंट्रेशन वेरी करती है. जब फिनोल्फथलीन और वी कैन यूज मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर और थाइमोल्फथलीन या फिनोल्फथलीन यूज किया जाता है, तो बेटा इन दोस केमिकल रिएक्शंस इंडिकेटर का कलर जैसे ही चेंज होता है बाय एडिंग एसिड इन दैट, तो वो हम वॉल्यूम को भी नोट डाउन करते हैं कि इनिशियली कितना एसिड का वॉल्यूम था ब्यूरेट में और आफ्टर द प्रोसेस जब कलर चेंज हो गया है सो कितना एसिड यूज हो गया है. सो टाइट्रेशन मेथड इज अनदर वे टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. सिमिलरली we have some physical methods as well. यहाँ पे ये जितने भी methods हैं, these are physical methods. Number one is spectrometry, जिसमें बेटा apparatus यूज किया जाता है spectrophotometer. That is actually the sum of two meters, spectrometer और photometer. इन दोनों की combination से ये बनता है spectrophotometer. ठीक है. So spectrophotometer में किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट किया जाता है? इट एक्चुअली
गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस, कि किस अमाउंट की रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई हैं. आइदर वी हैव रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. यूवी रेडिएशंस जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और वेवलेंथ स्मॉल होती है. ऑन द अदर हैंड वी हैव IR रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है. सो बेटा जो स्पेक्ट्रोमीटर बताता है अमाउंट ऑफ रेडिएशंस कितनी एब्जॉर्ब हुई हैं. जितनी ज्यादा रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होएगा, बिकॉज रेडिएशन इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, रेडिएशन जब फॉल कर रही है तो एक्चुअली एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है मॉलिक्यूल्स को, और जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस होंगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा. ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ रेडिएशंस डिटेक्ट की जाती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कि कितनी एब्जॉर्ब्ड हुई है, और एब्जॉर्बेंस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन. सो बेटा एब्जॉर्बेंस ऑफ रेडिएशंस is directly proportional to rate of reaction. Got it? So second method है हमारे पास electrical conductivity method. The word itself defines the method जिसमें हम यूज कर रहे हैं कंडक्टोमीटर. कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कही जा रही है. इफ वी हैव अ सॉल्यूशन, तो बेटा सॉल्यूशन में क्या ऐसी चीज होएगी विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? वी हैव फ्री आयंस. ठीक है, और अगर मेटल्स होती हैं तो मेटल्स में कैरियर होता है कंडक्टिविटी का इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड में, वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस. ठीक है, किनकी हम बात कर रहे हैं? हम सॉल्यूशंस की. सो बेटा सॉल्यूशंस में जितने आयंस ज्यादा होंगे, जितना सॉल्यूशन आयंस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जितना ज्यादा सॉल्यूबल होएगा उतने ही ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे. जितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे उतनी ही कंडक्टिविटी ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू टाइप्स ऑफ एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल यू हैव HCl एंड यू हैव CH3COOH, दैट इज एथेनोइक एसिड. बेटा एथेनोइक एसिड will give us less hydrogen ions, जिसको हम कहते हैं partial ionization. तो बेटा वहां पे rate of reaction जरा slow होता है. For example, you have HCl. तो HCl के जितने भी molecules होते हैं बेटा वो ionize हो जाते हैं. They exist in the form of ions, not in the form of molecules. So सारे ions जब मौजूद हैं हमारे पास in the solution, सो हम कहते हैं दैट इज शोइंग कंप्लीट आयनाइजेशन. ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करते हैं एथेनोइक एसिड की, CH3COOH, some of the molecules of ethanoic acid will dissociate into the ions and some of the molecules will left behind in the form of molecules, जिसकी वजह से हम कहते हैं दैट इज शोइंग यू द पार्शियल आयनाइजेशन. ये होता है मतलब पार्शियल आयनाइजेशन का, कि कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए हैं अपने आयंस में, एंड देयर आर सम मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल दिस मॉलिक्यूल इज नॉट डिसोसिएटेड इनटू द आयन, ये मॉलिक्यूलर स्टेट में ही है. सो बेटा ऐसे जो एसिड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज वीक एसिड्स. सो बेटा यहां पे वी ऑब्जर्व कि देयर आर लेस आयंस एंड इन दिस केस वी हैव मोर आयंस, सो दैट्स व्हाई इट इज कंडक्टिंग मोर. इलेक्ट्रिसिटी इसमें से ज्यादा पास करती है, तो आयंस कंडक्टिविटी डिटेक्ट की जाती है कंडक्टोमीटर से, और जितने ज्यादा आयंस कंडक्टर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, जितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होएगा. कोवेलेंट रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस निस्बतन स्लो होते हैं. रीजन क्या होती है? क्योंकि उनके आयंस नहीं बनते. सो आयंस जब कम हैं सो रेट ऑफ रिएक्शन भी निस्बतन स्लो हो जाता है. नेक्स्ट है जी रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड.
दैट इज यूजिंग रिफ्रैक्टोमीटर, और जिसमें यूज किया जाता है कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस थिंग इन फिजिक्स एज वेल, जहां पे आप पढ़ते हो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो रेशियो होती है, दैट इज गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि वेलोसिटी एक मीडियम में और वैक्यूम में वेलोसिटी की जो रेशियो होती है, दैट इज गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जितने चेंज ज्यादा हो रहा है उतना ही स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होएगा। सो नेक्स्ट वन इज डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, जिसमें apparatus जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है दैट इज डायलेक्ट्रोमीटर, और चेंज इन वॉल्यूम पे जो चीज डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जांपल इनिशियल वॉल्यूम आपके पास, जिस तरह अभी एग्जांपल दे रहा था आपको एसिड बेस टाइट्रेशन की, वॉल्यूम चेंज ऑब्जर्व किया जाता है इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो जितना चेंज ज्यादा आ रहा है और जितना जल्दी चेंज आ रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, सो उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होएगा। एंड द लास्ट वन इज ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, इस वर्ड पे थोड़ा सा फोकस करना है हमने। ऑप्टिकल मींस ऑप्टिकल लाइट्स के लिए यूज की जाती है ना टर्म। रोटेशन मेथड, रोटेशन यहां पे लाइट को हम यूज कर रहे हैं, रोटेशन एंगल रोटेट होएगा, ठीक है। पोलरीमीटर यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट इस मेथड में, जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रेट ऑफ रिएक्शन की। होता क्या है बेटा, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होती है दैट फॉल्स ऑन अ मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल जो सब्सटेंसेस यूज किए होते हैं एंगल को रोटेट करते हैं। लाइट का जो एंगल होता है इट रोटेट्स। सो रोटेशन जितनी ज्यादा होती रहती है इट वेरीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो वी कैन से कि ऑप्टिकल रोटेशन मेथड डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ रोटेशन of light, और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की जाती है। सो विद दिस वी हैव कवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड हाफ लाइफ मेथड, और बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स एंड रिएक्शन काइनेटिक्स के जो MDCAT में डायरेक्टली असेस किए जा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच। So students, we covered these concepts जो कि हमारे पास MDCAT के first 3 सब टॉपिक्स हैं, जिसमें we have rate of reaction, factors affecting on rate of reaction and determine करने के इनके methods, physical or chemical methods. So if you have any query in your mind, do let us know in the comment box so that we can give our feedback to you. और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जा सके, आपके क्वेश्चंस को एड्रेस किया जा सके। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच।